Assalamualaikum students, welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Today we will study the science in grade 5. So open your books with me. Today our unit is Kingdom Animalia. Our unit is unit number 5, Kingdom Animalia. किंगडम कहते हैं बादशाहत को और एनिमलिया कहते हैं जानवरों को. अब ये हमारे पास है जानवरों का ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रीडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट वी हैव इन दिस यूनिट. You can find living things almost everywhere on the earth. From deep blue, the ocean, to the air above the clouds, there are lakes, rivers, forests and deserts on our planet. All these places have living things. Scientists sort living things into different groups because these makes their study much easier. In this unit, we will deal the animals and fall in the kingdom Animalia. Student, if we observe our surrounding, you can see that we have all the living, we have all type of living things around us. Some of them are reptiles, some of them are birds, some of them are animals, some of them are living on mountains, and some of them are living in water. So according to their structure, their physical structure, and according to their how they in which environment they live, scientists made their groups. These groups make them these groups make their studies easily for scientists. Okay student, now we will study today we will study the group of animals. This is called Kingdom Animalia. So let's start reading about animals. Classification of animals. Animals की या जानवरों की जो है group बंदी. Do you know that Kingdom Animalia is the largest group in the world? It is divided into two large groups: vertebrate animals with a vertebral column and invertebrate animals without a vertebral column. They are classified further into smaller groups shown by the classification V. Now we have studied that there are two group. Animal group जो है वो क्या है, हमारे पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है. बहुत सारी काइंड्स के डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स हैं, और हर ग्रुप के जो एनिमल्स है डिफरेंट, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से, उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया है. आपके पास पहले तो आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स वो दे हैविंग अ बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट्स वो दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, एंड देयर आउटर स्ट्रक्चर इज़, or outer layer or outer surface or outer skin is hard as compared to vertebrates. So we can see that here we have two groups. vertebrates में आपके पास जो है वो फिश आ जाती है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं. और इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास जो है वो वॉर्म्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फ़िश आ जाती हैं मुख्तलिफ़ तरह की. ठीक है, let's start reading about according to their classification. Vertebrate are as below. Fish. Whenever you go fishing, you observe a variety of fish in that part of water. Fish are found all over the world with almost 28,000 different species. They have the streamlined bodies which help them to swim fast against a water current. Their bodies are covered with the scales which protect them and help in their movement. Fish breathe through gills and swim through fins. They are cold-blooded vertebrates.
अब फ़िश के बारे में अगर हम स्टडी करें तो आपको पता है कि तकरीबन 28,000 जो है वो फ़िश की मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर फ़िश जो है वो पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर जो है इसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स बने हुए होते हैं, और इसके फिन्स होते हैं जिसके थ्रू, गिल्स होते हैं, फिन्स के थ्रू जो है ये मूवमेंट कर सकती हैं ईज़िली। और फ़िश जो है वो पानी के अंदर रहती है और ये सांस लेने के लिए जो है वो गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। और ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो वो अपना टेम्परेचर इस तरीके से, अपनी बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से चेंज करेंगे कि उनको ज़्यादा सर्दी ना लगे और वह सर्वाइव कर सकें। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से सेट करेंगे कि उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे और वो सर्वाइव कर सकें। सो देज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। They live in water and reproduce by laying eggs in large number. Their eggs are soft and have a jelly-like substance which protect them from the drying out in the air. Examples are tunca, shark, salmon, eel. ओके, फ़िश जो है वो क्या करती है, एग देती है, और इनका जो एग होता है वो सॉफ्ट होता है, और इसके ऊपर जो एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, इससे प्रोटेक्ट करता है कि ये इसका जो एग है वो ड्राई ना हो सके। और हमारे पास जो है वो फ़िश की जो डिफरेंट काइंड है, ईल है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टंका है। Amphibians, they are cold-blooded vertebrates. The amphibians means two lives, one in water and one on land. So they can live both in water and land. Adult amphibians spend most of their time on the land but return to water to lay eggs. Their eggs are jelly-like and do not have hard shell on them. Their skin lacks scale, hair and feather. एम्फीबियंस हमारे पास कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, और एम्फीबियंस का मतलब है दो तरह की ज़िंदगी गुजारने वाले जानदार। इन्हें हम दो तरह की ज़िंदगी गुजारने वाले जानदार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास पानी में भी रहते हैं और ये हमारे पास खुश्की में भी रहते हैं। और कहते हैं ये जब एग का सीज़न आता है तो क्या करते हैं, ये पानी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके एग देते हैं, और इनका एग भी जो है वो जेली लाइक होता है, और लेकिन इसके ऊपर हार्ड जो है वो शेल नहीं होता, और इनकी जो स्केल होते हैं उसके ऊपर जो है वो फीदर और इनके स्किन के ऊपर जो है वो स्केल और हेयर और फीदर मौजूद होते हैं। They breathe through lungs and skin which is moist and slippery and aids in breathing. Example are frog, newts, toad and salamander. अब आपके पास जो है इनकी जो स्किन होती है, आउटर स्किन जो होती है वो स्लिपरी होती है और मॉइस्ट होती है, चिकनी चिकनी और नमी वाली होती है, नमदार होती है, और ये अपनी स्किन के ज़रिए और लंग्स के ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं। रेप्टाइल, रेंगने वाले जानदार। रेप्टाइल आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, सम लिव इन वाटर एंड सम ऑन लैंड। मोस्ट रेप्टाइल ले हार्ड शेल एग बट सम ले सॉफ्ट एंड लेदरी एग्स। देयर स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद अ स्केल विच प्रोवाइड देम विद प्रोटेक्शन। मोस्ट रेप्टाइल ब्रीथ थ्रू द लंग्स। एग्जाम्पल आर स्नेक, टेट्राइस, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। आपके पास जो है वो रेंगने वाले जानदार क्या होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे कैन ऑल्सो मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और ये मोस्टली पानी के अंदर भी पाए जाते हैं और खुश्की में भी मौजूद होते हैं। इनकी जो ये भी एग देते हैं, और इनका जो एग का जो शेल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस एंड फिश। और इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है, और उस कवर होती है स्केल के साथ, जो क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो है वो सांस लेते हैं अपने फेफड़ों के ज़रिए,
और इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या हैं, स्नेक्स हैं, सांप, टेट्राइस, मगरमच्छ और कछुआ है। स्टूडेंट, आज का यूनिट हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल स्टडी द रिमेनिंग यूनिट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।